لیکن یہ کہ اب ظاہر ہے گھر کی تو ذمہ داری ہے، سب چیز بنانی ہے، لیکن شادی سے پہلے تو میں کبھی کچن میں گئی بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ میں ہاسٹل میں رہتی تھی، 1-2 دن کے لیے میں آتی تھی. پھر شادی کے بعد میرے ہسبینڈ مجھ سے زیادہ اچھے کوک ہیں، وہ بڑی اچھی چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی، وہ مطلب وہ ہاسٹل میں رہے ہیں اور آؤٹ سائڈ رہے ہیں گھر سے، تو وہ مطلب کیک بھی بڑے اچھے اچھے بناتے ہیں. لیکن یہ کہ اب میں نے آہستہ آہستہ سیکھا. کھانا تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، کیک تو شوق کی بات ہے کہ تو وہ مطلب ان کا تو ارادہ تھا کیک لینڈ ایک بڑی طور پہ بنانے کا، لیکن وہ مصروفیت کی وجہ سے کر نہیں سکے. انہوں نے بیکنگ کورس بھی کیا ہوا ہے، تو میں بڑی لکی ہوں اس بارے میں کہ اب جیسے بچے ہیں، ظاہر ہے مجھے ہی کوکنگ کرنی ہوتی ہے تو چکن ہی زیادہ تر بنتی ہے. لیکن یہ میں نے بہت اچھی بات سنی، ابھی بتایا کہ کھانے کے دوران ایب جیسے نہیں نکالا کرتے، اور یہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، میں نے پڑھا تھا کہیں کہ کھانے کے دوران ایب نہ نکالیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ناپسند بھی تھی نا تو آپ خاموش رہتے تھے، لیکن کہتے نہیں تھے. بے شک مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی بنانے والے کی ایک دلجوئی بھی ہو جاتی ہے. تو میں تو کوئی اتنی خاص کوک ہوں نہیں، لیکن اب آ گیا ہے، وقت نے ہر چیز سکھا دی. اچھا کبھی کچھ جلایا خراب تو جلتا ہی رہتا. کیا کتنی چیزیں جلائی ہیں دل کے علاوہ؟ مطلب کھانا ہی بتائیے گا، یہ نہیں کہ میں نے فرنیچر جلایا، میں نے کارپیٹ جلایا، میں نے گھر جلا دیا. کوئی خاص نہیں، بس وہ گھر کی جو سادہ کوکنگ ہوتی ہے، اور گھر میں بھئی اگر دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں تو کیٹرنگ باہر سے ہی ہوتی ہے، اور چھوٹی موٹی دعوت تو خیر میں بنا لیتی ہوں. اب ہو گئی ایکسپرٹ، شامی کباب اچھے بناتی ہوں. اور جیسے اب یہ بقرعید کا موقع ہے تو میری 2 دیورانی ہیں، حسینہ بھابی، حسنہ بھابی اور زرین بھابی، وہ اتنی اچھی ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں. شبانہ بھابی وہ میری بڑی بھابی ہیں. مطلب یہ کہ ان کے کھانوں کے آگے بھائی میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. ان کے تو ہاتھ میں ایسے مزے ہیں. بھائی تینوں بھابیاں ہماری، بشرا بھابی، سب کھانے کے ماشاءاللہ سب. اور میرا کام ہے دسترخوان لگانا اور اٹھانا، برتن رکھنا، اور سب سے مشکل کام ہے تقریبات کے دن. گیسٹ بھی تو ہوتی ہیں نا جی، میں ظاہر میں گیسٹ بھی ہوتی ہوں. ویسے میں شامی کباب بناتی ہوں دونوں دنوں میں. صحیح، زبردست. تو ڈاکٹر سائیقہ کیا بناتی ہیں بہت اچھا؟ مجھے لائک میٹ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ مطلب مجھے بہت ساری چیزوں میں بتاتے ہیں مزید اچھا کس طرح سے کیا جائے. اچھا، ان کو بھی یہ شوق ہے. اصل میں وہ باہر ہے تو وہ خود سے کوکنگ کرنا، تو یہ چیز اتنی پرفیکٹ ہونی چاہیے، اس میں یہ چیز ڈال لو گی تو یہ اچھی طرح سے مزید چنے گل جائیں گے، اور دیز اینڈ دیٹ. اور لائک شادی سے پہلے اتنا ہی ہے کیونکہ میرا اسکیجول اتنا بزی ہوتا تھا کہ مجھے کوکنگ کا اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا. شادی کے بعد ہی لائک پراپر کوکنگ جو ہوتی ہے وہ میں نے اس کے بعد ہی شروع کی ہے. تو باقی کے کھانے والے زیادہ، لیکن یہ کہ اس طرح خراب نہیں کرتی میں کسی بھی چیز کو. میں بہت اچھا ہو سکتا نہیں بناتی ہوں لیکن خراب بھی نہیں کرتی. کچھ چیزیں کوشش کرتی ہوں کہ پھیل جاتا ہے جب آپ کام کرتی ہیں. لائک جب کوئی نئی ریسیپی بیکنگ کر رہی ہوں تو بہت ہیلپ، یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا. ادروائز یہ کہ نارمل کوکنگ میں اتنا نہیں ہوتا جتنا بیکنگ وغیرہ میں. اچھا تھوڑا سا. اچھا، اس سوال کے پیچھے کیا راستہ؟ ان کے پھوڑ اور ان کے سگڑ ہونے کا اندازہ. نہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ بہت اچھا پکاتے ہیں لیکن کچن پھیلا دیتے ہیں، پھر وہ ڈبل کام ہو جاتا ہے. وہ ایک دفعہ کرتے ہیں پھر وہ اس کو صفائی میں لگتا ہے ساتھ ہی صحیح. لیکن کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے پکا بھی رہے ہیں اور سمیٹتے بھی. میرا تو یہی ہے. اچھا چلیں ہم اپنے ناظرین کے لیے کچھ ریمیڈیز شامل کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ ناظرین پکائیں تو بہت اچھی طرح بھی پکائیں، اور ذرا اپنے ایریا کو بھی صاف ستھرا رکھیں، جہاں آپ کام کر رہے ہیں اس کو بھی نہ پھیلائیں. یہ ایک آپ کے لیے جا رہا ہے میسج. لیکن ہاں، ٹپ ہم لینا چاہ رہے ہیں ہمارے تمام مہمانوں سے ایک ایک کر کے. تو آغاز کرتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں خصوصی طور پہ عید الاضحیٰ پر گوشت کھانے میں تھوڑا زیادہ اس لیے بھی وہ کانشیس ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تھوڑی اسمیل رہ جاتی ہے کیونکہ فریش قربانی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا ٹپ آپ کو معلوم ہے سفیر صاحب؟ دیکھو، ایک چیز جو سب سے بڑی جو سائنسدانوں کی طرف سے آئی ہے، ڈاکٹروں کی طرف سے آئی ہے، وہ یہ کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے تھوڑی سی اس میں اس لیے زیادہ سا لوگوں کو پکانے میں دقت ہوتی ہے. اس کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بہت دیر تک گوشت کو الٹا یا جانور کو نہ لٹکایا جائے تو اس کا جو خون ہے نا وہ نہ نکل جائے. تو جو پہلے ہوتا ہے یعنی ادر دین قربانی، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قطرہ قطرہ کر کے سارا اس کا نکل جاتا ہے، اس میں نہیں ہوتی. اچھا، یہ جو جمع ہوا خون ہوتا ہے جانور کا، یہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ظاہر قربانی کا گوشت کھانا ہے اور فوراً کھانا ہے. تو اس کا ایک ترکیب جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ جب اسے کٹ کر لیں تو صاف اسی وقت دھو کے اور اسے جالی میں رکھ دیں دھونے کے بعد، تاکہ وہ جتنا ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جائے.
تو پھر شاید وہ خطرناک نہ ہو. لیکن عموماً جو ہے دیکھیے قربانی کی عید کے بعد اکثر پیٹ خراب یہ وہ گڑبڑ رہتی ہے. اور ناظرین کیونکہ یہ وہ کام ہے جو گھر کی خواتین کرتی ہیں اور یقیناً یہ تمام ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے کہ چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے مینیج کریں, گوشت گلا بھی اچھا ہو اور اس میں کوئی اسمیل بھی نہ ہو. تو گوشت گلانے کے لیے بھی کچھ ٹپس ہوتی ہیں جو خواتین آزماتی ہیں, تو ڈاکٹر سرکار آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ گوشت قربانی کا گوشت تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا گلنے میں, ایزیلی ہو جاتا ہے, لیکن بعض اوقات اگر ایسا ہے تو کچا پپیتا یوز کرتے ہیں, پہلے ہی پیس کے باریک جو اس میں جمع کر کے نا فریج میں رکھ دیتے ہیں, اور 1 اسپون آپ ڈال دیں تو ویسے بھی صحیح رہے گا اور بچوں کو بھی کھانے میں ایزی رہے گا. اس کے علاوہ ایک بہت اچھا ترکیب ہے, وہ میرے ہسبینڈ نے ہی مجھے سکھائی ہے پہلے, اب تو خیر میں بہت ایکسپرٹ ہو گئی. اس میں یہ تھا کہ جیسے ہمارے یہاں تو بکرے ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہاں گائے کا اتنا زیادہ نہیں ہے, تو یہ ہے کہ جیسے گوشت کو بوائل کر لیا, گوشت سافٹ ہو گیا, اس کے بعد مٹن کو گوشت کو جو ہے انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کرنے. اسی طرح چاپیں بھی ہوتی ہیں, انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر جب چاٹ مسالہ لگا کے کھاتے ہیں. اب سب کی جتنے بھی پڑوسی آ رہے ہیں, گیسٹ آ رہے ہیں, کوئی گوشت دینے کوئی گوشت لینے, سب کے آگے ہم پلیٹ بھر کے رکھ دیتے ہیں, وہ چل رہا ہوتا ہے ساتھ میں کولڈ ڈرنک, تو ایسیڈیٹی کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کیونکہ اسپیشلی عید الاضحیٰ پر قربانی ہوتی ہے تو بہت زیادہ کھایا جا رہا ہوتا ہے, دعوتوں کا سلسلہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کوئی ریمیڈی کچھ بھی, کیونکہ ہربلسٹ ہیں آبویسلی, تو کوئی بتا سکتی ہیں کہ جس سے ایسیڈیٹی کی پرابلم نہ ہو لوگوں کو؟ یقیناً بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں خوب گوشت کھا کے. بالکل کیا کہیں گے؟ اچھا, ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی گوشت کا آئٹم ہوتا ہے تو آپ اس کے لہسن ادرک کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یوزولی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لہسن ادرک کا پیسٹ بنا کر کے فریج میں رکھ دیا جاتا ہے. ویسے تو لہسن کے بہت پازیٹیو اثرات ہیں کیونکہ وہ کولیسٹرول کو بھی جو ہے وہ ریڈیوس کروا رہا ہوتا ہے اور مطلب کھانے کی اصلاح بھی کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن اس کو اس طریقے سے کرنے سے وہ ہوتا ہے کہ اس کی افادیت کھو جاتی ہے. تو اس کا بیٹر ایک تو یہ کہ میں اس اصلاح سے ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ جو پیسٹ بنا کر کے لوگ جو رکھتے ہیں تو اس کو کس طرح سے سیو کریں کہ لہسن کو جو کٹ کرنے سے, جو اس کے سلائسز میں سے کٹ کرنے سے جو ایک اس کا انگریڈینٹ ہوتا ہے لہسن, تو وہ گرائنڈ کرنے سے وہ میس ہو جاتا ہے سارا. تو وہ اس کی جو کہتے ہیں افادیت اس کی کھو جاتی ہے. تو اگر آپ اس کو بلینڈ کرنے سے پہلے سلائسز میں کٹ کر کے تھوڑے سے پانی میں بوائل کر لیں تو وہ, اور پھر اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں تو اس میں وہ چیز اس کی جو ہے وہ سیو ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اور بھی چیزیں آپ سے پوچھنی, یہ ٹپس جاری رہیں گی, ایک چھوٹا سا بریک ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ناظرین دیکھتے رہیے صبح خیر یسریٰ خان کے ساتھ. آپ سبھی کو عید مبارک. عید الضحیٰ مبارک, عید الضحیٰ مبارک. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول مکرم نبی معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یوم الاضحیٰ یعنی قربانی کے دن کسی شخص کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں, کیونکہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں, اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گا, اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوتا ہے, لہٰذا تم خوشی سے قربانی کرو. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں صبح خیر یسریٰ خان کے ساتھ. عید کا دوسرا دن آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں آپ کے جانے پہچانے اور ہمارے بہت 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 پیارے مہمان, اور جان رہے ہیں ان سے کہ یہ عید کیسے مناتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کچھ جانے اور مستی مذاق کے ساتھ ساتھ کچھ کام کی باتیں بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ عید کو بہت اچھے انداز میں گزار سکیں, کچھ ٹپس آپ تک پہنچ سکیں تاکہ آپ جب کوکنگ کریں تو وہ بہت ہی اچھی ہو, پراپر ہو, بہت سے کمپلیمنٹس آپ سمیٹ سکیں. تو ڈاکٹر سائیکہ سے بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے کہ کیا کیا جائے اگر پیٹ خراب ہو جاتا ہے, لوگوں کو ایسیڈیٹی کی پرابلم ہوتی ہے. ایک دوسرا سوال بھی جو ایک پرزور والا سوال ہوتا ہے نا, بھرپور سوال, وہ یہ ہے کہ بقرعید پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس موقع پر کہ گوشت کم کھاؤ. دیکھیں, اور پھر دوسری جانب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عیدی گوشت کی ہے, عیدی بھی نہ لو, صرف گوشت لو. ٹھیک ہے, تو پھر گوشت تو ہم کھا نہیں سکتے, کیا کریں کہ ہم گوشت بھی کھاتے رہیں اور پیٹ بھی خراب نہ ہو؟ تو ایسی کوئی ٹپ دے دیں, اس کے ساتھ کیا ملایا جائے, کوئی سیلڈز ہو, جو بھی ہو. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ سیلڈس تو آپ ویسے بھی استعمال کریں, ویسے بھی اچھا ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ کہ جن لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہائپر گلیسیمیا ہے یا پھر لپڈ کا لیول یا کولیسٹرول کا لیول جن کے بڑھا ہوا ہے, شوگر لیول بڑھا ہوا ہے, احتیاط کے ساتھ بلڈ پریشر ہے, احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے. تو وہ یہ کریں کہ کوئی بھی آپ کچھ بھی لینا ہے
तो आप 1 गिलास पानी में 10 मिनट्स बिफोर योर मील आप यूँ करेंगे अस्पगोल को थोड़ी देर सोक कर लें। अस्पगोल का पानी पहले से पी लेने से ये होता है कि वो जो उसका जो लुआबदार पानी होता है वो स्टमक की लाइनिंग पे जा करके वो एक लाइन बना देता है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, चाहे वो ज़्यादा शुगर हो, ज़्यादा ग्लूकोज के साथ साथ जो वो मतलब नमकियात ज़्यादा हैं या कोलेस्ट्रॉल लेवल या लिपिड लेवल है, तो वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इजीली जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अच्छा। तो वो आपकी बॉडी के अंदर फिर जो है वो नहीं हो रहा होता। सही है। तो आप एटलीस्ट खाने से अगर 30 मिनट्स पहले ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ ये कि आप 10 मिनट्स पहले फिर इसको ले लें। ठीक है जी। और हम बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान भी कि अदरक और लहसुन के पेस्ट और उसके बड़े नहीं, देखें भाई बात सारी ये है कि ख़वातीन बहुत माहिर है और हम पेस्ट नहीं बनाएंगे, हम तो और ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, हम क्यूब्स बना के रख लेते हैं और मतलब प्रोफेशनल लुक है, लेकिन उसके भी नुकसान आते हैं। क्या है नुकसान कोई या वो सही है, प्रॉपर है, कर लें? लेकिन उसका पर्पस अगर आपने ये किया हुआ है कि वो सेफ नहीं रहते हैं, ख़राब हो जाता है, हाँ। आपने क्यूब्स की फॉर्म में किया हुआ है, तो वो एक हो सकता है रीज़न। बाकी है कि अगर आप उसको सेफ रखना चाहें तो आप यूँ कर सकते हैं कि पहले तो मैंने कहा था कि आप स्लाइसेस में पहले लहसुन और अदरक को स्लाइसेस में कट करके बॉईल कर लें और उसी पानी में उसको ग्राइंड कर लें। अच्छा। ठीक है। अब ये कि पानी वाली कोई भी चीज़ होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो जब पहले कि पका लेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी। दूसरी चीज़, उसको मज़ीद सेव करने के लिए किसी भी कांच वाली जार में अगर उसको रखते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। सही। ठीक है। और उसके ऊपर आप कोई सा भी ऑयल 1 चम्मच उसके ऊपर डाल दें तो वो चीज़ ख़राब नहीं होगी, सेफ हो जाती है। बाज़ लोग ये करते हैं कि उसको क्यूब्स की फॉर्म में कर लेते हैं कि ताकि ख़राब ना हो, तो अगर आप ऑयल डाल देते हैं वैसे प्रिजर्वेटिव रोल प्ले करता है। हाँ, सही। क्यूब की फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो वो हार्मफुल तो नहीं है? नहीं, वो नहीं हार्मफुल नहीं है, वो असल में ऑक्सीडेशन हो जाती है उसकी, तो इस लिहाज से होता है। तो बेहतर तरीका ये है कि इसमें अगर आप ऑयल ऐड कर लेते हैं तो फिर वो नहीं ख़राब होगा। ठीक है जी। नाज़रीन, ये कुछ टिप्स आपको बता रहे थे, अगर आपको भी लगता है कि आपके खानों में कुछ इस तरीके के मसले होते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं। फेसबुक पेज सुबह खैर QTV पर अपने क्वेश्चन भेज दीजिए या मेल कर दीजिए subahbakhair@yqtv.tv। अगर हम बातों के दौरान भूल भी गए आपका सवाल शामिल करना तो इंशाल्लाह आपको पेज पर जवाब दे दिया जाएगा। तो हम बात करें ईद के हवाले से, माशाल्लाह हमारे मेहमान यहाँ सभी मौजूद हैं, क्यों ना थोड़ा सा मूड को चेंज किया जाए। बड़े हम बहुत कॉन्शियस हो गए, किचन से ज़रा सा बाहर निकलते हैं, क्या ख्याल है? निकल जाए, बिल्कुल पक्की बात है। तो हम कुछ थोड़े से मासूम से गेम्स करते हैं, ठीक है, हमारे मेहमानों के साथ। और एक कॉलर हैं और हमारे साथ बहुत अहम कॉलर है, आइए उनसे बात करते हैं। पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ कौन प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। ये मेहमान यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कुछ मेहमान अपनी मसरूफियात की वजह से आ नहीं सके, लेकिन कॉल के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं हम उनको। ARYQT पर आपने इनको बहुत देखा है, यकीनन ये भी एक हेल्थ एक्सपर्ट है और आज का दिन तो डॉक्टर्स के नाम हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर खुर्रम मुशीर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। ईद का दूसरा दिन है डॉक्टर साहब, पहला दिन कैसा गुजरा आपका? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल घर वालों के साथ पूरी कुर्बानी। और समझे सबसे बड़ी बात कि माशाल्लाह पाकिस्तान क्राइसिस से, प्रॉब्लम से बाहर निकलता चला जा रहा है और लोग जिस तरह कुर्बानी अदा करें, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के तमाम लोग जिस तरह इस त्यौहार को मना रहे हैं, ना सिर्फ ये कि एक जज्बा के साथ साथ लोगों के अंदर एक बड़ी बात और अहम हो गई कि कुर्बानी सिर्फ एक फरीजा नहीं है, बल्कि फरीजे के अलावा लोग इसको एकदम ऐसी चीज है जो आपके दिल के अंदर उतरती चली जाती है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या फरमाइशें वगैरह करते हैं? बारबेक्यू कर लिया, क्या इरादा है? जी बिल्कुल, बस आजकल तो जरा थोड़ा एक पहले दिन की दूसरे दिन की थोड़ी थकन है, तो दोस्तों से मुलाकात होगी कल। आज रात से इंशाल्लाह बारबेक्यू वगैरह करेंगे तो इसको और तरीके से बिल्कुल एंजॉय करते जाएंगे। बिल्कुल माशाल्लाह, कुर्बानी हो गई है आपके घर, कलेजी पक गई है? बिल्कुल जी, बिल्कुल हो गई और लोग बड़ा एंजॉय करें सब इंशाल्लाह। बारबेक्यू अब थोड़ा निकलना होगा आज शाम से बाहर और बारबेक्यू वगैरह आज से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बड़े इलाज बड़े जबरदस्त लिखते हैं, बहुत अच्छी क्रीम्स है, दवाइयाँ, खुद कभी बारबेक्यू पर जोर आजमाए? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में देखिए बात ये होती है कि डाइटिंग या जो एहतियात होती है वो आपको भूल जाना चाहिए 1-2 दिन के लिए। अच्छा, कभी कभी अपना चीट डेज भी होते हैं, आप एंजॉय करें, फिर जब इंशाल्लाह ईद का सीजन खत्म हो जाए। पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो ईद के हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि लोग देखिए कुर्बानी का मकसद, बहुत सारे लोग होते हैं कि जी ठीक है आप बहुत एंजॉय करें, ये आपका हक है, ये आपका फर्ज भी है, मगर साथ साथ ये जो कुर्बानी है ये देखिए उन लोगों के लिए जो जिनको पूरे साल गोश्त या इस तरह की नेमतें इतना नहीं मैसर होती। तो पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा आप बल्कि अपना हिस्सा भी कोशिश करें कि उनमें तकसीम करें, लोगों को फायदा पहुंचे और फिर आप खूब एंजॉय भी करें, इससे कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि ईद के दूसरे दिन आप शामिल हुए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। आपको, आपके घर वालों को बहुत ईद मुबारक।
नाज़रीन, डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ मौजूद थे, आपके जाने पहचाने डर्मेटोलॉजिस्ट। उनसे जान रहे थे कि वो ईद कैसे मना रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं। माशाल्लाह ये मेहमान यहाँ मौजूद हैं और बहुत अहम मैसेज डॉक्टर साहब ने दिया कि जो हम यकीनन कुर्बानी कर देते हैं, हिस्सा बना देते हैं, वो मुस्तहिक तक पहुँचे, जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचे। अंबर बाजी, आपके घर क्या सिलसिला होता है कुर्बानी का और तकसीम का? खुसूसी तौर पर मुस्तहिक लोगों को तलाश किया जाता है या कोई ख़ास घर है जहाँ हर साल पहुँचाते हैं आप लोग? नहीं, हम लोगों के कुछ घर तो ये है कि मखसूस हैं कि हमें जहाँ भेजना है, तो वो उसके अलावा इस दफ़ा कुछ ऐसा सिलसिला किया कि जो घर हैं उनके अलावा हम लोगों ने ख़ास जगह है, वहाँ पे सफ़ेद पोस्ट लोग हैं जो कि हमें पता है कि वहाँ पे वो लोग काफ़ी अर्से खा नहीं सकते लेकिन मांगते भी नहीं है। सही। तो इस दफ़ा हमने वहाँ भिजवाया। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी मेरे हस्बैंड के, मेरी सास की बात। हम लोगों ने फैसला किया कि वहाँ भिजवाएंगे और बाकायदा घरों में देंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहीं और से आए हुए होते हैं, वो मांग लेते हैं और छीना झपटी और ये वो, ऐसा सिलसिला नहीं। मतलब बाकायदा पैकेट्स बना के बाकायदा घरों में दिया गया। घरों में तो उनका भरम भी रह जाए, जाहिर सी बात है कि कहीं से गोश्त आया है, और हमारा काम भी हो जाए जो अल्लाह ताला में मतलब ये कि ऐसी तौफीक हर किसी को दे और इतना दे कि नवाजने वाला हाथ रखे। क्या बात है, क्या बात है। और नाज़रीन, यकीनन ये बात हकीकत है और आप जानते हैं, पढ़ते हैं, इस बात को समझ भी लीजिए कि कुर्बानी जो आपने की है, इसका ना गोश्त मेरे रब को पहुँच रहा है, ना इसका खून मेरे रब को पहुँच रहा है, तो आपकी वो नीयत, वो आपका तक़वा और जिसके साथ आप कुर्बानी करते हैं। और माशाल्लाह इतने फ़ज़ाइल हैं इस कुर्बानी के। नाज़रीन, आप बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको कुर्बानी करने की तौफ़ीक अता फरमाई है। इसका खून, अगर मैं गलत नहीं बोल रही, इसके खून के कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले बख्शिश हो जाती है। और यकीनन यहाँ सलमा भी मौजूद है। सलमा, आप कुछ फ़ज़ाइल अगर मैं कहूँ इसी कुर्बानी के हवाले से बयान फरमाएं तो? देखिए, इसकी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। बेशक ये सुन्नत इब्राहिमी है, फिर ये सुन्नत मोहम्मदी भी है, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की, सहाबाए कराम ने भी की। इसकी फ़ज़ाइल में मुख्तसर तौर पर जो जिक्र करूँ वो इस तरह के, देखें, इसका जिक्र किया जाएगा उसका खून गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो जाता है, बख्शिश हो जाती है। इसके एक एक जो जानवर हम कुर्बान कर रहे हैं उसका एक एक बाल के सदके जो होता है उसके सदके हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। फिर फरमाया गया है कि जब इंसान जब पुल सिरात से गुजरेगा ना, तो यही जो है वो जानवर तुम्हारे सवारी करेगा और तुम्हें फिर आग के उससे जो है वो आसानी से ले जाएगा। सुभान अल्लाह। वही बात है साहिबा, वो तो माइल आता है, हम लेने वाले तो बड़ी। बेशक ये खूबसूरत बात है। नाज़रीन, ईद का दिन है, यकीनन आपने कुर्बानी भी की होगी और गोश्त की तैयारियां भी हो रही होंगी। पैकेट सब पहले दिन नहीं बन जाते, आज इनकी कुर्बानी हो रही है वो भी, और जो पहले दिन वाले हैं वो भी। तो कोशिश कीजिए हिस्सा मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाइए, ये हमारी जानिब से आपके लिए एक मैसेज भी है। और यकीनन ये बात तो कहने वाली बात ही नहीं है, तो आपको खुद समझना चाहिए कि गोश्त किसके घर पहुँचाना है। देखिए सफ़िया साहिबा, अंबर बाजी सब यहाँ माशाल्लाह मौजूद है। मैंने अक्सर लोगों को ऐसे भी देखा है कि उनके घर खुद कुर्बानी हुई है, बराबर घर में भी कुर्बानी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा गोश्त का बड़ा पैकेट उनके घर जा रहा होता है। मतलब उनको जरूरत क्या है, उनके घर खुद कुर्बानी होती है। बिल्कुल, हम लोगों ने भी हम लोगों का तो ये सिस्टम है, अगर किसी के घर कुर्बानी हुई है वहाँ नहीं भिजवाते। और मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं है जिनके घर कुर्बानी है, बल्कि उन घरों में अच्छा है वो बच के कहीं ऐसी जगह, हाँ वो ऐसी जगह जाए जहाँ पे नहीं हुई, वो लोग मुस्तहिक है, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो मतलब जानने वाले हो, वो लोग मुस्तहिक है। मतलब वो वाले मुस्तहिक नहीं है कि अगर उन्होंने नहीं खाया, मतलब उनके घर में अगर कुर्बानी नहीं हुई है तो उनके घर में तो उन तक पहुंचाना चाहिए। डॉक्टर सर का आपका क्या सिलसिला रहता है? कुर्बानी का जो हिस्सा होता है वो आप खुद बनाती हैं, क्या रहता है? नहीं, कुर्बानी के हिस्से तो ताहिर और सफदर मेरे देवर हैं वो पैकेट बना रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे दोनों गेट पे आप यकीन करें लाइन लगी हुई होती है तीनों दिन। तो सबको एक एक पैकेट मिल रहा होता है और दूसरे दिन भी यही, तीसरे दिन भी है। घर में स्टोरेज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए क्योंकि फ्रेश बन रहा होता है और सारा दिन खाया जा रहा होता है, मेहमानदारी साथ ही चल रही होती है। और रिश्तेदारों में जहाँ नहीं होती वहाँ भी जाता है। एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि देखिए कुर्बानी की जो बात हो रही थी, कुर्बानी है कुर्ब से, सही, यानी अल्लाह से हमारा ताल्लुक कितना करीब है। तो जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने टेस्ट लिया था, अल्लाह ताला को ये मकसूद नहीं था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा हों, अल्लाह ताला को ये देखना था कि ये मेरा मोमिन बंदा मेरे एहकाम की पैरवी करता है या औलाद की मोहब्बत आड़े आती है। और जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यानी मोमिन वो हैं जो अल्लाह के हुक्म के आगे फिर माल और औलाद बेशक नहीं। तो फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम भी वो फर्जंद जिन्होंने कहा कि बाबा जान अन्नल्लाह मा साबिरीन, आप मुझे साबिरों में पाएंगे बेशक। तो फिर ये अल्लाह ताला ने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हर आजमाइश में पूरे उतरे। क्या बात है, क्या और जिस तरह हाजरा अलैहिस्सलाम को वहाँ पे जो मक्का की काले पहाड़ों पे सफ़ा मरवा पे
تو میں یہ سوچتی ہوں کہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑا ہے اور اس کے بعد دوبارہ پلٹ کے نہیں گئے کافی عرصے، جب تک اسماعیل علیہ السلام دوڑنے چلنے والے ہو گئے، اس لیے کہ کہیں محبت نہ آگے آ جائے. مطلب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کس طرح لیتا ہے؟ مطلب یہ ٹیسٹ تھا جس میں وہ ہر جگہ کامیاب ہوئے. خلیل اللہ ان کا لقب ہے اسی وجہ سے. تو یہ ہے کہ مطلب میں نے کہا دیکھو انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے شکوہ بھی نہیں کیا کہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے. کتنے پیغامات ہمیں تاریخ اسلام سے ملتے ہیں، صرف یہی نہ اسماعیل علیہ السلام نے کوئی شکوہ کیا. تو ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ قربانی جو قرب سے ہے، اس میں اخلاص ہے. کیونکہ اللہ کے پاس تو سورہ الحج کی جو آیت ہے کہ خون اور گوشت تو اللہ کو نہیں چاہیے، دلوں کا تقویٰ. تو ہمارے لیے یہ ٹیسٹ ہے کہ بہترین اخلاص نیت کے ساتھ بغیر ریاکاری کے کوئی دکھاوا نہیں، تاکہ اللہ کے ہاں مقبول ہو اور جانور کے ہر بال کے عوض نیکی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ناظرین، عید کا دوسرا دن ہے اور یقیناً یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کیا بات ہے، کون سا واقعہ ہے جس کی یاد میں ہم یہ قربانی کیا کرتے ہیں. ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، خلیل اللہ بھی ہیں آپ. تو اگر ہم بات کریں ذبیح اللہ کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو یہ پیارے اللہ کے بندے ہیں، ان کی حیات کا مطالعہ مشاہدہ کرنا لازمی ہے. اور جب آپ مشاہدہ کریں گے تو یقیناً آپ محسوس کریں گے کہ ہم کتنے کمزور ہیں اور کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی. ناظرین، ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. اب قربانی کے موقع کو لے لیں کہ اکثر لوگ نئے ڈیپ فریزرز خرید رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ آدھے پورے جو جانور قربان کیا جا رہا ہے وہ پورا اس میں اتار دیا جاتا ہے. یہ میڈیکلی بھی آئی تھنک کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، کیا جو گوشت رکھ رہے ہیں وہ ایک سال تک ہم رکھ کے کھا لیں وہ صحیح ہے؟ جیسے آپ کو خود فیل ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ اگر فار ایگزامپل تھوڑی سی پرانی ہوتی ہے، آپ کو اس کی ٹیسٹ میں بہت چینجز فیل ہو رہی ہوتی ہیں. اور جو فرسٹ اور سیکنڈ ڈے جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی نارمل جو لے کر آتے ہیں اس سے بہت ڈفرینٹ لگ رہا ہوتا ہے. اسٹوریج ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے. بے شک. ناظرین، عید کا دوسرا دن ہے، ماشاءاللہ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب کے گھروں قربانی بھی ہوئی ہے، سب نے اچھے طریقے سے حصہ پہنچایا بھی ہے ان لوگوں تک جو مستحق ہے. امید ہے آپ یہ بھی کریں گے. اور جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے، پہلے دن بھی آج بھی یہ کہوں گی جو سیلاب زدگان ہیں وہ بھی جو IDPs ہیں ان کو بھی یاد رکھنا ہے. اگر آپ جا نہیں سکتے ان تک تو کسی ریفرنس کے تھرو، جیسے ماشاءاللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر نے اور احساس ٹرسٹ نے بھی اجتماع قربانی کا خاص سلسلہ رکھا. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام میرے پیارے ناظرین کی قربانی مقبول فرمائے کہ جنہوں نے حصہ ڈالا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم انسان بنے اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ سمجھ جائے. تو عید کا دن ہے ماشاءاللہ، سب کے گھر بڑی رونق ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دسترخوانوں کو یوں ہی سجا رکھے اور ہمارے گھروں کو آباد رکھے. بریک کے بعد ناظرین ہم آتے ہیں اور جانتے ہیں ہمارے مہمانوں سے کہ یہ کتنے ریپڈ ہیں سوالات کے جوابات دینے میں. تو بہت اچھا سا سلسلہ ہے، پیارا سا. اور صفیہ صاحبہ کی مسکراہٹ بھی بتا رہی ہے ایسے جیسے وہ پھنس گئی ہوں وائوا میں ٹیچر کے سامنے. لیکن ایسا کچھ نہیں، بہت مزے کے کچھ سوالات، ان کے جوابات. لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہیے صبح بخیر یسریٰ خان کے ساتھ. سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ثواب کی نیت سے اور خوشی کے ساتھ قربانی کی وہ اس کے لیے آگ سے حجاب ہوگی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر یسریٰ خان کے ساتھ. عید کا دوسرا دن میرے تمام ناظرین کو دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمیں دیکھا سنا جا رہا ہے بہت بہت عید مبارک. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے پروگرام میں آپ کے جانے پہچانے بہت پیارے مہمان. ان سے باتیں ہو رہی ہیں اور یقیناً جان رہے ہیں یہ عید کیسے مناتے ہیں. بچپن کی عیدیں، کھانا پینا سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ہماری ایک بہت ہی پیاری اور بہت ہی خاص مہمان نے. یقیناً آپ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان سے بہت محبت بھی کیا کرتے ہیں. ARYQTV کی فیملی کا بہت اہم، بہت مضبوط حصہ. میری مراد ہے ان ثناء سے جن کو بہت لوگ فالو کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ حوریہ فہیم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک آپ سب کو. خیر مبارک جی، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، سب گھر والوں کو بہت مبارک ہو. کیسا رہا عید کا پہلا دن؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا ماشاءاللہ، آپ سب کی دعائیں. تو مصروف رہیں کچن کے اندر یا گھومنا بھی رہا، جانا بھی رہا، دعوتیں بھی رہیں؟ یسریٰ میرے خیال میں جو میٹھی عید ہوتی ہے اس میں شاید پھر بھی آپ کسی کے گھر چلے جاتے ہیں پہلے دوسرے دن، لیکن یہ والی عید تو اتنی زیادہ مصروف ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے خواتین زیادہ ہی بزی ہو جاتی ہیں کچن میں.
हाँ, ये तो बिल्कुल है। तो कुर्बानी हो चुकी है, क्या क्या पका चुकी हैं? क्या क्या पका चुकी हूँ? पकाने में तो सभी साथ होते हैं घर वाले। गोला कबाब हुए, कच्चे कीमे के कबाब हुए, और आपको पता है मेरी एक डिश जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है कीमे का हलवा। कीमे का हलवा तो जरूर बनता है। अच्छा, ये नई चीज है। नई चीज। वाह वाह, हलवा बहुत टेस्टी बनाती है। जबरदस्त, क्या बात है। तो आपको रेसिपी भी नहीं कर सकते कि वो कीमे का। अच्छा, अंबर बाजी भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आज माशाल्लाह, और तारीफ कर रही हैं कि बहुत अच्छा कीमे का हलवा आप बनाती हैं। तो हमें कब खिला रही हैं आप? वही बात है, आपको आना पड़ेगा फिर घर। मैं तो नहीं बता सकती हूँ। बिल्कुल आते हैं इंशाल्लाह जी। और बताइए, माशाल्लाह QTV देख रही हैं, सब मेहमान मौजूद हैं। सफिया मलिक साहिबा स्कॉलर हमारे साथ, और कैसा लग रहा है? घर बैठी हैं और आपकी दोस्त यहाँ अकेले अकेले मौजूद है स्क्रीन पर। हाँ, बस क्या करें, सब अकेले अकेले ही बुलाते हैं, हमें साथ बुलाते ही नहीं है। सही है, ये बिल्कुल यही शिकवा हमें ईद उल फितर में भी था कि एक साथ बुलाएं, तब हम लोग शायद हम लोग को ज्यादा मजा एक साथ ही आता है। ईद में भी यही हुआ था अंबर, कि जब मैं उठी थी तो फिर अंबर आई थी। हाँ बिल्कुल यही हुआ, ये उठी है मैं आई हूँ, हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, ये क्या है, एक साथ में ज्यादा मजा आता है हम लोग। चले जी, माशाल्लाह नाज़रीन, हमारे साथ हुरिया फ़हीम साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात हो रही है। ईद का दूसरा दिन है, उन्होंने अपना टाइम हमारे नाम किया है। ये बताइए, माशाल्लाह प्यारी सी छोटी सी साहबजादी भी हैं, उनकी क्या फरमाइश रही है? कुर्बानी हो गई, बहुत मोहब्बत हो गई थी जानवर से, रोना वगैरह चल रहा है या सब्र आ गया है? नहीं, बिल्कुल भी रोना नहीं चल रहा। वो बहुत हैरान होती हैं, पिछले साल भी यही परेशानी थी कि ये क्या हुआ है, फोन क्यों निकल रहा है। अभी भी यही था कि मम्मा अब ये कब कटेगा, इसका फोन अंकल ने इनको घुमा दिया है, गिरा दिया है। वो जो कसाई था उसको अंकल बोल रही थी, छोटी है ना, गिरा दिया है। जब वो टहलाएगी फिर समझ में आएगा उसमें। हाँ सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हुरिया बाजी आपकी कॉल के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी सी ईद गुजारे, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप लोग का कि आप लोगों ने याद रखा, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक एक मरतबा फिर। नाज़रीन, हुरिया फ़हीम साहिबा हमारे साथ कॉल पर मौजूद थी और माशाल्लाह ये मेहमान हमारे साथ मौजूद है। ये कीमे की रेसिपी आपको पता है? नहीं, रेसिपी तो उसी को पता है, लेकिन पता है फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि जब इसने लेके आई कीमे का हलवा, अब वो लेके आई और नहीं खाओ। अब हम लोगों ने खाया, सब बताओ किस चीज़ का है? अब हम खोपरे का है, सब ने बोला खोपरे का है। बिल्कुल एंड में कहीं जाके वो गोश्त का जब बोला, अरे ये तो गोश्त है, सब हैरान रह गए क्योंकि सबने यही कहा कि खोपरे का है। बिल्कुल पता नहीं चला जब तक बिल्कुल एंड में उसको जो एक गोश्त का एक रेशा होता है वो जब आया तो फिर इसने बताया कि कीमे का। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा नाज़रीन, यहाँ हमारे साथ माशाल्लाह मेहमान मौजूद है, अंबर बाजी भी मौजूद है, लेकिन डॉक्टर साइका से क्योंकि हमें मालूम हुआ था ये माशाल्लाह नात भी पढ़ती हैं, तो ये फरमाइश रही हमारे मेहमानों की जानिब से भी खुसूसी तौर पर कि कुछ एटलीस्ट एक शेर डॉक्टर साइका हमें सुना रही है। बिस्मिल्लाह कीजिए। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। तुम पर मिला लाख जान से कुर्बान या रसूल बराए मेरे दिल के अरमान या रसूल क्यों दिल से मैं फिदा न करूं जान या रसूल। सुभान अल्लाह। क्यों दिल से मैं फिदा न करूं जान या रसूल रहते माशाल्लाह क्या बात है जी, क्या बात है। डॉक्टर होने के साथ साथ डॉक्टर साहिबा नाते भी पढ़ती हैं माशाल्लाह। तो पसंदीदा नाखो कौन है आपके? बहुत सारे लोग हैं। हुरिया रफ़ीक, उनको मैं बहुत शौक से सुनती हूँ। आमिर जी को भी काफ़ी ज़्यादा सुना है उनका हमेशा से। क्या बात है। अच्छा, हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे नाज़रीन की कुछ फैमिलीज़ की खास रेसिपीज़ होती हैं। एक तो हमें नई चीज़ आज पता चल गई है और ये तो हमें
पेज पर डालनी चाहिए बाकायदा कीमे का हलवा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ रेसिपीज हैं, कुछ मसाले जो घर में खुद बनाए जाते हैं। एक तो पैकेट के काम होते हैं, उनसे अगर बाज आया जाए घर में बनाया जाए तो उसका जायका ही अलग होता है। तो आप सब पैकेट वाले हैं या घर में भी कुछ करते हैं? दोनों, कभी पैकेट कभी घर। अच्छा, मैं तो मिक्स। अच्छा, तो ये कुछ राजस्थानी सी कोई रेसिपी थी जो हमें पता चली थी, वो भी क्योंकि नई चीज थी, तो मैं चाहूंगी वो शेयर करें अपने नाज़रीन के साथ। डॉक्टर साहिबा। अच्छा, राजस्थानी गोश्त में सिंपल ये होता है कि गोश्त को पहले आप हल्का सा ऑयल डाल के पहले फ्राई कर लेते हैं। अच्छा। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया और उसके बाद फिर उसमें गोश्त और सफ़ेद मिर्च 1 किलो के हिसाब से लाइक होता है कि 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च आप उस गोश्त में डाल दें और थोड़ा सा नमक, वो डालकर इस गोश्त में जो पानी डालकर उसको गलने के लिए छोड़ दें। जब गोश्त प्रॉपर्ली बॉईल हो जाता है तो फिर उसमें फिर आप एक पाउडर बना लेते हैं। उसमें इलायची के 3-4 दाने होते हैं और बादाम, छोटी इलायची जो सब्ज़ इलायची होती है वो, उसके आप 4 से 5 दाने वो डालते हैं और बादाम 10 बादाम और 1 चम्मच खोपरा। अच्छा। और इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा। और इसको फिर आप उसमें ऐड कर देते हैं, जैसे वो गल जाए तो उसमें आप ऐड कर दें और उसमें फिर थोड़ा सा क्यूरा डाल देते हैं और इसलिए कि उसकी खुशबू थोड़ी सी अच्छी होती है, तो वो उसमें ऐड कर दें। और उसके बाद फिर जब बिल्कुल फाइनली जब रेडी हो जाए तो उसमें फ्रेश क्रीम डाल दें 3 से 4 टेबल स्पून। तो जबरदस्त भाई, जबरदस्त, क्या बात है। ये डॉक्टर साइगा हमें लिख के भी देंगी, जो हम नाज़रीन आपके लिए खुसूसी तौर पर पेज पर भी डाल देंगे अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया है तो इंशाल्लाह। और ये माशाल्लाह मेहमान हमारे साथ मौजूद है, कैसे हो सकता है इनके साथ आखिरी लम्हात है, आखिरी लम्हात में मैं इन लोगों की सांस ना अटका दूं। डॉक्टर ज़रक़ानी कुछ चांपों का बता रही थी। चांपों का? हाँ, ये मेरे ससुराल की एक खास रेसिपी है और ये ईद के 3 दिन बनती है और मेहमान के लिए भी है, मतलब घर में जो आता है सबके लिए होता है सुबह से। अब इसमें ये है कि चांपे सारे जो कुर्बानी उसकी चांपे वॉश करके बड़े बर्तन में डाल के उसमें सिर्फ सिंपल कुटी हुई मिर्चें होंगी, थोड़ी सी हल्दी, अदरक, लहसुन और ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं, नमक। अच्छा। और हल्की बिल्कुल धीमी आंच पे बंद करके रख दीजिए। अच्छा। थोड़ी देर में वो गल जाएंगी। उसके बाद अंडे में डिप करते जाएं और फ्राई करते जाएं और मज़े से खाते रहें। इसमें एसिडिटी भी नहीं होगी और मसाले भी इसमें कोई ज़्यादा नहीं, बच्चे बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं, इसलिए आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल नाज़रीन, ट्राई कीजिएगा। ये तो बहुत आसान सी रेसिपी थी और क्योंकि अंबर बाजी कह रही थी मुझे डिफरेंट स्टाइल से चांपे बनानी है तो उनको पता भी चल गया। तो ये बताइए अंबर बाजी, माशाल्लाह मेहमानों का सिलसिला आपके घर रहता होगा, खूब दावतें करती होंगी, तो स्पेशली अगर ईद उल अज़हा के हवाले से बात करें और हम कहें आपको कि एक दावत अरेंज कर दें जिसमें आपको एटलीस्ट जो है 15 डिशेज़ रखनी है, तो आप क्या क्या रखेंगी? सिर्फ 15 डिशेज, उसमें आप चाहें तो मीठा भी डाल सकते हैं। हम 15 में भी खुश हो जाएंगे ना। ये तो आधी डिश में ही चल जाएगी। ये 15 डिश की बात कर रही है। 15 डिशेज के नाम बता रहे हैं बाबा जी। कच्चे कीमे के कबाब, हरे मसाले के कबाब और सीख कबाब, बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, चापे और कितनी हो गई? ये हुई हैं 7, 8वां बोल देंगे अब। गिनती सही करना। हाँ सही कर रही हूँ। सही गिनती आती है। ओके, शीर खुरमा और मिठाई। अच्छा डिश है ना, मिठाई डिश नहीं है, सॉरी। शीर खुरमे के अलावा जो मैंने बताया था फ्रूट सैलेड वो है और क्या पुलाव रख सकते हैं, लेकिन पुलाव जैसे नहीं, एक ही चीज़ रख सकते हैं। ओके, खाने की कमी फ्राइड राइस रख सकते हैं, शाशलिक रख सकते हैं और सैलेड, रायता डिश नहीं है, मान लो छूट दो ना, सिर्फ 2 रह गए। ओके, कबाब में से बताते हैं इतने तो सारे तो कबाब बता दिए। जल्दी फिश रख दी। ईद उल अज़हा में फिश कोई बात नहीं है, कुछ डिफरेंट हो जाए। और ईद उल अज़हा में अच्छा जिस तरह मेरे जो क्या कहते हैं नंदोई है, वो कलेजी नहीं खाता, तो उसके लिए स्पेशली कुछ अलग से जैसा अगर बना ले तो सब्जी भी रख दी। चले जी 15 डिशेज हो गई। बाद में ऐसा होता है ना गोश्त नहीं खाते तो सब्जी। चले नाज़रीन, माशाल्लाह इनके घर की दावत में आपको मीट भी मिल रहा है, मतलब चिकन भी मिल रही है, आपको फिश भी मिल रही है और सब्जी भी मिलेगी और साथ में यकीन मानिए ये रायता भी देती हैं। रायता भी देती है, जरूरी है। बिल्कुल। तो सफिया साहिबा कैसी रही ये मेहमान नवाजी? ये तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, लेकिन एक खराबी है इसमें। बता रहे दूर करने कहाँ से शुरू करे, कहाँ से खाना शुरू करे, टैग लगा दे। नहीं देखो, एक किस्म की हो तो बंदा चलो ये भी मैंने खा लिया। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, 15 डिशें खा। अच्छा, हम जैसे सब ना खा पाए तो मतलब होम डिलीवरी का इंतजाम है? होम डिलीवरी, क्योंकि लेकिन दस्तरखान पे मौजूद हर चीज़ को टेस्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा। ठीक है नाज़रीन, ये अंबर बाजी की जानिब से दावत ही इन्होंने बताया क्या क्या मेन्यू हो सकता है, तो ये तरीके से आपको भी जवाब दे रहे हैं। तो आज जब आप सोचें आज क्या पकाया जाए तो आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। फिर भी लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल होता है ये, स्पेशली रोजाना सुबह उठ के काम करने वाले, अम्मी आज क्या पकेगा,
अम्मी उल्टा कहती भाई तुम लोग देख लो क्या पकेगा। बहुत मुश्किल सवाल है। सही। अच्छा सफिया साहबा आप बताइए, आपके घर अगर दावत का एहतमाम हो तो आप किन किन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखेंगी, क्या क्या इंतजाम हो? किचन को छोड़ दें, वो डिपार्टमेंट नंबरबाजी का हो गया, अब आपने क्या करना है? देखो सबसे पहले हमें ये ख्याल करना चाहिए कि अगर हमारे घर में कोई बच्चे आए हैं, छोटे छोटे बच्चे आने वाले हैं, तो कोई एक चीज़ ऐसी भी हो कि वो बेचारे भूखे ना रह जाएं, क्योंकि हर बच्चा जो है वो मीट के नहीं कर, कोई एक ऐसी छोटी सी जैसे आजकल तो कोई अचानक तो आता नहीं, तय होता है मैं तुम्हारे घर तुम मेरे घर, अब बंदे आ रहे हैं, उसके पास 3 छोटे छोटे या 2 बच्चे हैं, अब चांपे नहीं खाएंगे वो, ऐसा कुछ नहीं, तो कोई ऐसी डिश हो जो उनके खाने के लायक हो। फिर कभी कभी आता है कि कोई ऐसे बुजुर्ग होते हैं उन्हें एसिडिटी का बड़ा मसला होता है, कोई एक आध चीज़ उनके लिए ख्याल किया जाए, बाकी तो नॉर्मली बदपरहेज़ी तो हो ही जाती है, लेकिन उसके साथ एक शॉर्टकट ये है कि अगर आप कोई फल रख दें, तो जो कोई कुछ नहीं खा पाएगा तो वो तो अंबरबाजी रखेंगी ना, वो क्या था फ्रूट का फ्रूट सैलेड रखेंगी। और क्या बता दें क्रीम डाल के क्या होता है? फ्रेश क्रीम और कोई भी मतलब ये कि मिल्क, सब मुझे तो खैर सबसे बेस्ट वही लगता है। आपने मिलाया ऐसे फ्रूट्स जो कि पानी ना छोड़े, वो कट कर उसमें दोनों चीजें मिलाए, इतना टेस्टी होगा कि आपसे लोग फरमाइशें करने लगेंगे। मतलब आपने क्या समझा था डॉक्टर साइकिल से, आप रेसिपी बता सकती हैं? बहुत टेस्टी रेसिपी आ रही है नाज़रीन। और ईद, हाँ बिल्कुल सलमा आप भी कुछ बता दें, कोई रेसिपी? एक्सपर्ट है हम लोग तो होते एक्सपर्ट। नहीं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। किस चीज़ की रेसिपी बताऊँ? अंडा उबालने की बता दें आप। अंडा उबालना भी एक फन होता है। कितना टाइम चाहिए? बिल्कुल ज़्यादा किया तो खराब हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो रायते की या सलाद की तो रायता बता रही हैं आप। दही को जो दही को जो है वो अच्छी तरह से जो है वो कर लें। वो बाज़ दफ़ा दही को जो सही तरह फेंटते नहीं है ना, तो वो मोटी मोटी से रह जाते हैं, तो वो नहीं रहने चाहिए, सही तरह रह जाए। अगर आप पुदीने का बनाना है तो पुदीने को पीस लें, और फिर उसमें जो है नमक जिस तरह डालना है, काली मिर्च अगर डालनी चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, टेस्ट के लिहाज से तो होता है। क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं भी बता दी नाज़रीन, ऐसा ही एक रायता बहुत सिंपल सा, दही लें आप, उसको थोड़ा सा फेंट लें जैसे उन्होंने बोला, उसमें आप डाल लें, पहले से कूटना पड़ेगा उसके लिए आपको, लहसुन थोड़ा सा, उसमें जीरा डाल दें, उसमें हरी मिर्च डाल दें, थोड़ा सा नमक दही में डालिए, मिलाइए और सर्व कर दीजिए, रायता तैयार। मगर ऐसे मुस्कुराते भी रहिए। आसान होता है, मतलब खाने में बनाने हम लोग बाद में बता देते हैं, कर रहे होते हैं, पता चल रहा होता है। ये बिल्कुल सच है। अच्छा डॉक्टर ज़रका, आपकी तरफ आ रही हूँ, और ये बड़ा स्पेशल सा गेम है, बहुत आसान सा गेम है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि बहुत खूबसूरत सेट है नाज़रीन, ये भी फूल वो भी फूल ही फूल, और सेट पे जो मेरे मेहमान ये भी किसी फूल से कम नहीं है, तो ये गुलदस्ता सजा है आपके लिए। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 8 फूलों के नाम बताने। फूलों के नाम में रोज़ है, जैस्मीन है, लिली है, डेफोडिल्स है, और सदाबहार है, एवरग्रीन जो होता है हमेशा, और इसके अलावा गेंदे का है, ट्यूलिप है, हो गए? हाँ, एक रहता है अभी। अच्छा, और सनफ्लावर। वाह वाह, जबरदस्त, अल्लाह की कुदरत, क्या बात है जी, क्या बात है। और सनफ्लावर की एक बात में कि जैसे कुरान शरीफ में कि जमीन और आसमान की हर चीज सजदा कर रही है। तो हम लोग हाईवे पे जा रहे थे, मैं अपने ससुराल जा रही थी, 5-6 घंटे का रास्ता है, तो रास्ते में ऐसी जगह है कि सनफ्लावर का फॉर्म था पूरा, और आप यकीन करें सबका रुख एक जानिब, इतने खूबसूरत लगते हैं। हाँ, तो मैंने कहा देखो ये दलील है, ये हकीकत है कि ये इनके सर बिल्कुल झुके हुए। क्या बात, तो मैंने कहा देखो वाकई दुनिया में भी नजर आ रहा है, गौर फिक्र क्या बात है, बेशक। तो बड़ा अच्छा लगा। ईद की खुशियाँ हैं और हमारे मेहमानों के संग यकीनन ये तमाम बातें वो बता रहे थे जो इनके मुशाहिदे में भी हैं, और यकीनन ये कैसे पकाते हैं, क्या पकाते हैं, वो भी आज हमने शेयर करने की कोशिश की। अच्छा खाइए, अच्छा पकाइए, और यकीनन आप चाहें तो राजस्थानी डिशेस बनाइए, या चाहिए तो आप मीठा बनाइए, या मेरा रायता तो इट्स वेरी गुड, आप ट्राई कर सकते हैं नाज़रीन। बहुत इजी सी रेसिपी थी। तो वक्त बिल्कुल जो है वो इख्तिताम पर है। मैं चाहूँगी अपने तमाम मेहमानों के पैगामात ले लूँ। आगाज़ करती हूँ अंबरबाजी आपके साथ। मैं वही बात कहूँगी, मैं एक बात ही हमेशा करती हूँ कि उन लोगों का ख्याल रखें जो कि हकदार हैं लेकिन हाथ नहीं फैलाते। सही। और अपने स्पेशली अपने रिश्तेदारों का भी, क्योंकि वैसा होता है कि अनबन हो थोड़ी सी हो, नहीं उसको तो ये करना ही नहीं है। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखिए, अपने हमसायों का भी ख्याल रखिए, और फिर उन लोगों का जो सफ़ेद पोश है। बिल्कुल। सलमा, क्या पैगाम देंगी? जी देखिए, ये ईद जो है वो कुर्बानी की ईद है, एहसान है,
कुर्बानी और एहसार की, तो हमें भी ऐसे ही लोगों को, बिल्कुल सही कहा कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको देना चाहिए जैसे। लेकिन एक स्पेशली एक बात कि भाई हम ऐसे लोगों को जो अपने रिश्तेदार होते हैं या जो ज़्यादा करीब होते हैं उनको अच्छा नहीं, उनको अच्छा गोश्त देते हैं। और जो जैसे मोहल्ले के आम है, नहीं भाई इनसे तो अच्छी नहीं है, तो उनको बाज़ लोग जो है वो हड्डियाँ या फिर ऐसे चर्बी वगैरह, तो इसका खास ख्याल रखें। बिल्कुल दरमियाने, जिस तरह खुद रख रहे हैं, जिस तरह रिश्तेदारों को दे रहे हैं, उस तरह वैसे दूसरों को। डॉक्टर साइका, क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए, और क्योंकि हर एक में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, कोशिश करें कि उनमें अच्छाइयाँ ढूंढें। क्या बात। दूसरी बात ये कि लाइक ये कुर्बानी की ईद है, तो इस लिहाज से मैसेजेस जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ख्याल कीजिए, एहसास कीजिए दूसरों का भी, और सिर्फ इस ईद पे नहीं, आइंदा ज़िंदगी में भी इस चीज़ का ख्याल रखें। बिल्कुल। डॉक्टर ज़रका, क्या पैगाम मेरी देंगे? तरफ से मैसेज ये है कि तमाम आलम इस्लाम को हज मुबारक हो, अल्लाह ताला उनका हज मबरूर करे, जिसका सिला जन्नत है। और दूसरा ये है कि ईद कुर्बान सबको मुबारक हो। फस्तबिकुल खैरात, मतलब ये है कि हर काम में, नेकी के काम में दौड़ लगाएं, सुस्ती काहली नहीं। क्या बात है, छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ राई के दाने के बराबर भी जो नेकी है वो मकाम एराफ से आपको जन्नत या फिर दोज़ख का सफर क्या बात है, सुभान अल्लाह। बिल्कुल, हमारे पास वक्त इख्तिताम पर है, बिल्कुल खैरात ज़्यादा से बिल्कुल वक्त इख्तिताम पर है। और सबसे आखिर में मैं पैगाम इसलिए सफिया साहिबा का ले रही हूँ क्योंकि शी इज़ द सीनियर मोस्ट, सबसे अच्छा, सबसे जामे, सबका मिलाकर बेहतरीन सा पैगाम। सबकी बातें सब अच्छी थी, लेकिन एक इजाफा, सिर्फ मैं इजाफा करूंगी, हमारे वो बहन भाई जो अपने घरों से बाहर हैं, ITPs का है, कुछ सैलाब के लोग हैं, तो हमें चाहिए कि अगर हम खुद नहीं जा सकते तो जिन पर हमें एतमाद है, जैसे हमारे एहसास वाले, हमें चाहिए कि हम वहाँ खुद जाकर उनको दें, बेशक बेशक, ताकि पहुँच जाए। एहसास ट्रस्ट या ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट माशाल्लाह बेहतरीन काम करे, अल्लाह ताला इनको मजीद तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। और नाज़रीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम पर है, आपसे इजाज़त लूँगी। बहुत शुक्रिया सलमा मुस्तफ़ा आपकी आमद का, डॉक्टर साइका रेहान आपकी आमद का, डॉक्टर ज़रका ज़ाहिद आपकी आमद का, अमर रशीद साहिबा आपकी आमद का, और सफिया मलिक साहिबा आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जाने से नाज़रीन आप सभी को ईद मुबारक, बहुत बहुत खुश रहिए, अच्छी सी ईद मनाइए। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि चिराग दिल के जलाओ कि ईद का दिन है, चिराग दिल के जलाओ कि ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ कि ईद का दिन है, और गमों को दिल से भुलाओ कि ईद का दिन है, खुशी से बज़्म सजाओ कि ईद का दिन है। प्यारों के साथ प्यार से मोहब्बत से रहिए, अच्छे अच्छे तरीके से मिलिए, जो रंजिशें, जो भी कदूरतें दिल में मौजूद हैं, इनको दिल से निकाल दीजिए। दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जगा दीजिए। बस यही आपका कुल ईमान है और यही ज़िंदगी का मकसद। अच्छी सी ईद गुजारिए, अच्छा खाइए, और हमें ज़रूर बताइए कि हाउ वाज़ द प्रोग्राम। आपकी फीडबैक के लिए सुबह बखैर @AYQTV.TV, लेटर्स के लिए इंचार्ज प्रोग्राम डायरेक्टर सुबह बखैर D120 साइट कराची। एक बार मैं चाहूँगी हम सब क्यों ना खड़े होकर अपने नाज़रीन को अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे, ईद मुबारक कहेंगे। तो नाज़रीन आप सब बहुत अच्छी ईद गुजारिए, और मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़, और आप सभी को ईद मुबारक।